Hello friends, welcome to my channel. Today we are studying about biology of class 9th and the chapter name is the fundamental unit of life, that is cell. Cell is the structural and functional unit of life because we know that all the living organisms are made up of cell. Cell was discovered by Robert Hooke in 1665 when he observed a slice of cork through a microscope, and he observed these cells like a small compartment are closely packed, and these are looked like a beehive. But these all cells are dead, and the first living cell is discovered by Antony von Leeuwenhoek in 1674. On the basis of numbering of cells, organisms are divided into two parts, unicellular and multicellular. Unicellular means made up of single cell, and multicellular means large number of cells involved in the organism. सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल्स हैं अमीबा एंड बैक्टीरिया, एंड द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. अब बात करते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर की एंड द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Unicellular composed of single cell, only one cell present in their body, and multicellular means large number of cell present in their body. All the activities of organism are performed by a single cell, and in multicellular organism all the activities are performed not by a single cell, but in this case the function or all the activities are divided into different parts of body. That means all different parts of a body perform different functions, and this is called division of labor. Like our like cells of our heart works to pump the blood, and the cells of nervous tissue works to transfer the masses, like this. There is no division of labor, and multicellular division of labor present. The cells are specialized to perform different function of a body, so that division of labor within the cells of body. I have already explained this. Now the next topic is cell theory. Cell theory was given by Jacob Matthias Schalden and Theodore Schwann in 1839 and Schalden in 1838. Together proposed the cell theory. According to this theory, all living organisms are made up of cell and cell products. जितने भी living organism होते हैं वो cell के बने होते हैं या फिर cell के किसी products के बने होंगे. Cell is the structure and functional unit of life. That means all living organisms are made up of cell, and all the cells are work together or functions together. That means our body functional, made functional. All cells are arised from pre-existing cells. Means this is a cell, and it divided into two cells, and these two cells again divided to form another two cell. So all these cells are arised from प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोई भी नई सेल पहले कोई एग्जिस्ट सेल होगी उसी से ही बनती है. टाइप ऑफ सेल आर of two types, prokaryotic and eukaryotic. This is the classification based on the presence of nucleus. In case of prokaryotic cell, it is the cell in which nucleus is absent, like bacteria, blue-green algae, that means Monera kingdom. Eukaryotic cell in which nucleus is present, double membrane organelles are also present, and well developed cell. Example protists, fungi, plants and animals. Okay, now we discuss about prokaryotic and eukaryotic
cells in detail. First, prokaryotic cells are small in size. These are large in size. Nucleus absent in eukaryotic, nucleus present. Nucleolus present in prokaryotic, but nucleolus is also present in eukaryotic. nucleolus दोनों में होता है, लेकिन न्यूक्लियस मीन्स देखो सेल ये है, इसके अंदर हमने एक न्यूक्लियस बना लिया। इसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो और ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में यहाँ पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में ये न्यूक्लियस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे न्यूक्लियस। तो ये तो बात होगी यूकैरियोटिक की, और हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो न्यूक्लियस ना बना के सीधा हम इसका न्यूक्लियोलस बनाएंगे। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम एंड यूकैरियोटिक में मैनी क्रोमोसोम्स यहाँ हो सकते हैं। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सब प्रेजेंट होते हैं एब्सेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, ये सब प्रेजेंट होते हैं। डीएनए बाइंड्स विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए जो होगा वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाइंड होगा। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में पाई जाती है। दैट मीन्स ये सपोज डीएनए है और यहाँ पे हमने कुछ ये प्रोटीन्स लगाई हुई हैं, तो ये डीएनए इस तरीके से रैप हो जाता है इन प्रोटीन्स के ऊपर, तब जाके इनकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग होके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं, फिर और ज़्यादा कंडेंस होकर क्रोमेटिन फाइबर, तब जाके क्रोमोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम्स के बेस पर अगर देखें तो प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होते हैं, जो कि 2 यूनिट से मिलकर के बना होगा। 70s इज़ मेड अप ऑफ 50s एंड 30s। लार्ज यूनिट इज़ ऑफ 50s एंड 30s इज़ द स्मॉल यूनिट। अच्छा, ये 30 एंड 50 मिलकर के 80s होना चाहिए था, बट ये ओवरलैपिंग हो जाती है। मीन्स इस तरीके के अगर बड़ा वाला राइबोसोम है, छोटा वाला इस तरीके से है, तो एक साथ कंडेंस हो जाते हैं। जैसे ये है लार्ज यूनिट, ये है स्मॉल यूनिट, तो इस तरीके से ओवरलैप हो जाते हैं, एक दूसरे में धंस जाते हैं। इस वजह से इनका साइज़ जो है वो 80 ना हो करके 70s हो जाता है। सेम इसी तरीके से 80 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। इट इज़ मेड अप ऑफ 60 एंड 40s। लार्ज यूनिट 60, स्मॉल यूनिट 40, और मिल करके 100 होना चाहिए, बट ये 80 होता है बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग। एस मीन्स यहाँ सिडबर्ग यूनिट बोल देते हैं। और प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया, मोनेरा, जैसे कि हमने पीछे भी बताया था एग्जांपल्स, और मोनेरन्स या मोनेरा किंगडम के मेंबर्स को छोड़कर बाकी के सभी यूकैरियोट्स होते हैं। ये सेल्स के स्ट्रक्चर है, यहाँ देखोगे आप बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ काफ़ी डेवलप्ड सेल है। ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स या डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स यहाँ प्रेजेंट हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेल शेप एंड सेल साइज। सेल शेप की बात करें तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल ऐसा नहीं कि सभी एक जैसी हों, तो डिफरेंट शेप भी यहाँ हो सकती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द शेप ऑफ सेल मे बी वेरिएबल और फिक्स्ड। जो सेल की शेप होती है वो वेरी कर सकती है या फिर हो सकता है वो फिक्स्ड ही हो। वेरिएबल और इरेगुलर शेप अकर इन द अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो भी फिक्स नहीं होती है, अमीबा की भी नहीं होती है। इस तरीके से वो लगातार यहाँ पे चेंज करता रहेगा। जबकि कुछ सेल्स की बात करें जैसे कि ल्यूकोसाइट्स हैं या नर्व सेल हैं, तो ये सब जो हैं चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स की बात करें, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स तो हम डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं, तो आरबीसी की अगर बात करें तो वो इस तरीके से राउंड होगी, लेकिन हल्का सा बीच में थोड़ा सा दबाव होगा, यानी कि बाई कॉन्वेक्स शेप। साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगी। तो बाई कॉन्केव सेल शेप होती है आरबीसी की। एग हमारा राउंड होता है, ओवल शेप बोल सकते हैं या फिर, और नर्व सेल हमारी लॉन्ग होती है। नर्व सेल की आपको स्ट्रक्चर पता होगी, ये आगे वाला पार्ट इसका हेड रीजन है या सेल बॉडी कह देते हैं, जिसमें ये स्ट्रक्चर्स डेंड्राइट्स निकली रहती हैं। ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है इसको एक्सॉन कहा जाता है। इस एक्सॉन के ऊपर जो सेल प्रेजेंट है इनको स्वान सेल कहते हैं। एंड स्वान सेल से रिलीज़ होती है एक लेयर जिसको माइलिन सेथ कहते हैं, और माइलिन सेथ जहाँ पर एब्सेंट होती है उस पॉइंट को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और एक्सॉन लास्ट पार्ट जो होता है इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं।
ओके, सेल साइज की बात करें, द साइज ऑफ ए सेल वेरी फ्रॉम वेरी स्मॉल सेल ऑफ बैक्टीरिया, जो कि 0.2 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर तक हो सकती है। और लार्ज सेल की बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं और ऑस्ट्रिच की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच का एग ही होता है। और ह्यूमन बींग्स में अगर बात करें तो नर्व सेल बहुत ही लंबी होती है, जो कि 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं। स्मॉलेस्ट सेल वर्ल्ड में कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, एंड लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो सिंपली स्ट्रक्चर जो होती है सेल की, एक तो आउटर मेम्ब्रेन होगी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में यहाँ होता है न्यूक्लियस, यानी कि कंट्रोलिंग सेंटर। जैसे हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, इसी तरीके से सेल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? न्यूक्लियस। एंड यहाँ जो ये लिक्विड प्रेजेंट होगा, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, सेल की स्ट्रक्चर मेन कंपोनेंट्स यही होते हैं, लेकिन अगर हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ें तो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकता है कि एक और बाउंड्री हो जाए जिसको हम सेल वॉल कहेंगे, और यहाँ कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो, इस वाले लिक्विड में कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो, जिससे कि मैंने आपको अभी बताया था। ये जो ऑर्गेनल्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ इसी चीज़ों को हम पढ़ेंगे इन डिटेल। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है, इसके एक और बाहर की तरफ अगर बन जाए तो उसको सेल वॉल कहते हैं, यानी कि आउटर लेयर अराउंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर होता है, बीच में होगा जनरली, लेकिन प्लांट में थोड़ा सा साइड में हो जाता है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स या ऑर्गन्स एक तरीके से, या कोई भी स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं तो उनको सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है जो कि अंदर वाला जो सेल का कंपोनेंट्स है या बाहर जो इन्वायरमेंट है ये वाला, इन दोनों को ये सेपरेट करती है, यानी कि अंदर का सेल का जो पार्ट है या बाहर जो आउटर इन्वायरमेंट में जो भी प्रेजेंट है मटेरियल, उन दोनों को ये सेपरेट करेगी। तो एक बाउंड्री बिटवीन सेल पार्ट्स एंड आउटर इन्वायरमेंट। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल दिया गया है जो कि निकोलसन एंड सिंगार एंड निकोलसन ने दिया गया है। निकोलसन एंड सिंगार फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बोलते हैं इस मॉडल को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड एंड प्रोटीन। एक बार मैं आपको इधर स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, और यहाँ बना देती हूँ मैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये इस तरीके के 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं जो कि लिपिड की होती हैं ये। ठीक है, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर मिलेगी क्या है? लिपिड बाई लेयर, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो लिपिड की स्ट्रक्चर इस तरीके की होगी, एक राउंड पार्ट एक नीचे वाला। हेड एंड टेल। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसमें कहीं कहीं पर कुछ इस तरीके की प्रोटीन मिलेंगी। ये क्या है इधर? प्रोटीन। एंड ये जो कहीं कहीं पर ये प्रोटीन स्ट्रक्चर या ये जो लिपिड बाइलेयर है इसकी सरफेस पर भी ये मिल सकती हैं। तो ये क्या है? इसमें प्रोटीन लगी हुई है। तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? इट इज़ मेड अप ऑफ
लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड जो होता है वो बाइलेयर है एंड इट इज़ composed ऑफ टू पार्ट, हाइड्रोफिलिक हेड। फिलिक मीन्स हीटिंग, फिलिक मीन्स हीटिंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, मीन्स हेड इज द पोर्शन ऑफ अ लिपिड दैट इज वाटर हीटिंग। ओके, एंड द टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया है। फोबिक मीन्स होता है हीटिंग, फोबिक मीन्स हीटिंग, फीलिंग मीन्स लव या लविंग। ओके, तो हेड रीजन जो होता है वो वाटर लविंग होता है, टेल जो होता है वो वाटर हीटिंग होता है। ठीक है, दैट मीन्स हेड वाला रीजन कहाँ रहना चाहेगा, वाटर की तरफ रहना चाहेगा, और टेल वाला रीजन वाटर से दूर भागेगा। ओके, तो इसमें स्ट्रक्चर आप देखें तो हेड रीजन इस तरीके से है और टेल रीजन अंदर की तरफ है। ये ऐसे भी तो हो सकता था कि ये जो हेड रीजन है वो ऐसे अंदर हो जाए और टेल रीजन बाहर हो जाए, या फिर इस तरीके से हो जाए, ये भी ऐसे करके और नीचे वाली लेयर भी वो भी ऐसे करके। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? बिकॉज सेल का जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है और अंदर वाला है, इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है। तो वाटर की तरफ कौन रहना चाहता है? टेल। तो हेड। तो वाटर लविंग कौन है? हेड है। इसीलिए बाहर की तरफ यहाँ भी और यहाँ भी कौन है? यहाँ हेड। और अंदर की तरफ यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा? टेल। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, इस स्मॉल रीजन को यहाँ निकालूँ तो इस तरीके से कुछ आएगा। ये हेड रीजन वाटर की तरफ और टेल रीजन अंदर की तरफ रहेगा। ओके, तो इस तरीके से कुछ। तो टेल रीजन अंदर रहेगा और हेड रीजन आउटर, बिकॉज outer environment and inner environment of cell composed of water and head is the water loving, so head region is arranged towards the water, that means outer side. Now protein is also is of two type, extrinsic protein and intrinsic protein. तो ये जो यहाँ प्रोटीन लगी हुई है, तो आप देख रहे हो इधर कुछ तो प्रोटीन है जो अंदर तक जा रही हैं, कुछ हैं जो सिर्फ सरफेस पर हैं। तो ये जो प्रोटीन होती हैं अगर वो सिर्फ बाहर वाली सरफेस पर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। अगर वो उसके अंदर भी जा रही हैं, अंदर की तरफ भी हैं, तो उसको कहा जाता है इंट्रेंसिक प्रोटीन। तो प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड, इंट्रेंसिक मीन्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो लिपिड की अगर बात करें तो परसेंटेज रेशो वेरी करेगा, यानी कि वो डिपेंड करेगा सेल कैसी है, सेल का फंक्शन क्या है, इसके अकॉर्डिंग इनका लिपिड और प्रोटीन का रेशो अलग अलग हो सकता है। अच्छा, इनके ऊपर कुछ अदर सब्सटेंस भी यहाँ या अदर मटेरियल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ये भी मेम्ब्रेन की सरफेस पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि सरफेस पर ही ये ऊपर की तरफ लगे हुए होंगे। ओके, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इलास्टिक होगा, सेमी परमेबल मतलब हर एक को एंट्री नहीं देता, क्योंकि ये क्या बाउंड्री का काम कर रहा है। जैसे सपोज़ ये हमारी सेल है, ये आउटर इन्वायरमेंट है, तो यहाँ कौन अंदर आना है, कौन बाहर जाना है, तो वो कौन कंट्रोल करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पार्टिकल्स को चुन के सिलेक्ट करके तब अंदर भेजती है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली सेमी परमेबल बोला जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। लिविंग कंपोनेंट होता है सेल का। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द सेल। सेल का जो अंदर का कंटेंट है या सेल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, और ये मटेरियल को अंदर लाना या बाहर ले जाने का काम करती है। ओके, तो ये सब था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, कुछ टर्म्स, जैसे कि डिफ्यूज़न। तो कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, तो वो कैसे मूव करती है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न। मीन्स सेल के अंदर की तरफ सपोज़ कोई पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा है और बाहर की तरफ नहीं है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन उसका मूवमेंट हो जाएगा। जैसे CO2, O2,
तो सेल है उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड से सेल में ऑक्सीजन कैसे जाएगी, क्योंकि ब्लड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है जब वो लेकर के आ रहा है प्योर, और सेल के पास नहीं है, उसने ख़त्म कर ली अपनी ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, ब्लड उसको सेल को अंदर दे देगा। तो बाहर हाई कंसंट्रेशन है ब्लड में, सेल के अंदर कम है, इसीलिए बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन मूव कर जाएगी। सेम इसी तरह जब उसका रेस्पिरेशन होगा फूड का, मीन्स फूड से एनर्जी रिलीज़ होगी, तो CO2 रिलीज़ होता है, हम जानते हैं। तो CO2 जब वो बाहर निकलेगी तो उस दौरान भी डिफ्यूज़न होगा, यानी कि सेल के अंदर CO2 ज़्यादा, बाहर की तरफ कम, तो इसी वजह से जो CO2 है वो सेल से रिलीज़ हो जाएगी, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। ओके, तो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। ओके, अच्छा नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जस्ट इसका अपोजिट होता है कि यहाँ तो कोई भी सब्सटेंस आ रहा था, यहाँ कौन मूव करेगा, वाटर, और वो भी कैसे मूव करेगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ तो ये हाई टू लो जा रहा था, लेकिन यहाँ लो टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा ऑस्मोसिस में। ओके, एग्जाम्पल आता है जैसे कि यहाँ हमने एक पानी भर लिया एक बाउल में, तो यहाँ जो हमने वाटर लिया इसमें हमने एक किशमिश डाल दी। ओके, तो ये जो किशमिश होगी वो कुछ समय बाद फूल जाती है, तो किशमिश के अंदर की तरफ अगर शुगर कंटेन देखें तो बहुत ज़्यादा है, और अगर बाहर की तरफ शुगर कंटेन इस वाटर में नहीं है, यानी कि ना के बराबर, तो बाहर वाला कैसा हो गया, लो, अंदर की तरफ क्या हो गया, हाई। तो वाटर मूव कैसा करता है, लो टू हाई, इसलिए बाहर वाले कंटेन से अंदर की तरफ इस किशमिश में पानी अंदर एंटर कर जाता है, इसीलिए किशमिश फूल जाती है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट होगा वाटर का, एंड लेकिन लो एंड हाई कंसंट्रेशन किसके देखेंगे, किसी सॉल्यूट की, लाइक शुगर या सॉल्ट। इसी तरीके से एग्जाम्पल होता है जब हम अचार डालते हैं कैरी का, तो कैरी को उसे डालने से पहले थोड़ा सा नमक डाल के किसी कंटेनर में छोड़ दिया जाता है, उसके बाद बहुत सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है 1-2 दिन बाद, क्योंकि कैरी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कम है, लेकिन बाहर हमने उसमें नमक डाला हुआ है, तो बाहर कंसंट्रेशन कैसी हो गई, ज़्यादा, इसीलिए अंदर है लो, बाहर इन्वायरमेंट में है ज़्यादा, तो कैरी अपना पानी छोड़ देते हैं और पानी बाहर की तरफ रिलीज़ कर दिया जाता है। ओके, तो यही एप्लीकेशंस काफ़ी जगह यूज़ होती हैं ऑस्मोसिस की। डिफ्यूज़न के भी इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड हॉट कुक्ड फूड। गरम खाने की स्मेल आती है, ठंडे की नहीं आती है, बिकॉज गरम खाना होगा तो गैसेस जो वेपर्स हैं वो फास्ट डिफ्यूज़न करती हैं और हम तक स्मेल पहुंच जाती है, तो गैसेस में फास्ट डिफ्यूज़न होता है। एंड परफ्यूम की बोतल अगर खुली रह जाए या फिर हम परफ्यूम खुद पर लगाते हैं, तो उस दौरान चारों तरफ क्या होती है, स्मेल आ जाती है, तो क्योंकि परफ्यूम की बोतल या जहाँ हमने उसको लगाया हुआ है वहाँ पर है हाई कंसंट्रेशन, और बाहर इन्वायरमेंट में, आसपास के इन्वायरमेंट में होगी लो, तो हाई टू लो जाता है, तो यानी कि डिफ्यूज़न हो जाता है। ओके, तो आगे अगर हम बात करें, सेल का जो मीडियम है वो 3 टाइप का हो सकता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है जब सेल किसी मीडियम में रखी जाए, तो आउटर इन्वायरमेंट कैसा है सेल का, सेम कंसंट्रेशन वाला, यानी कि सेल के अंदर और बाहर सेम कंसंट्रेशन है। तो सेम कंसंट्रेशन का मतलब जितना वाटर अंदर जाएगा उतना ही ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ सेल ना तो फूलेगी ना ही वो सिकुड़ेगी, यानी कि श्रिंक या फिर स्वेल नहीं होगी। लेकिन हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि मीडियम में वाटर तो हाई होता है एंड लो सब्सटेंस कंसंट्रेशन, मीन्स अगर ये हमने एक सॉल्यूशन या मीडियम लिया हुआ है, इसमें सेल रखी गई है, ठीक है, तो बाहर की तरफ लो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की, अंदर है हाई, तो डिफ्यूज़न जो होगा वो कैसा होगा, डिफ्यूज़न क्या, ऑस्मोसिस बात कर रहे हैं हम,
तो ऑस्मोसिस कैसा होता है, लो टू हाई। तो पानी कहाँ जाएगा, लो टू हाई, यानी कि अंदर की तरफ पानी एंटर होगा और पानी जब इसमें भरेगा तो वो कैसे हो जाएगा, स्वेल अप। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हाइपरटोनिक की, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या मीडियम कहा जाता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन रहे। तो सेल जब इस मीडियम में रखा जाएगा तो ये जो सेल है यहाँ ये स्वेल हो जा रही है, यानी कि इस तरीके से जो है फूल जाएगी। और यहाँ अगर हम बात करें तो अंदर है लो, तो पानी कैसा जाता है, लो टू हाई। ऑस्मोसिस कैसा होगा, लो टू हाई। इसीलिए पानी बाहर की तरफ आने लगेगा और जब पानी अंदर आएगा तो ये सेल इस तरीके से सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेल का मीडियम चेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट था सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो थी उसी के आउटर अगर एक और लेयर पाई जा रही है तो सेल वॉल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, सेल को प्रोटेक्ट करना, उसको थोड़ी हार्डनेस देना। और ये फ्लेक्सिबल, टफ, रिजिड होती है, ठोस होती है, फ्लेक्सिबल भी होगी। ये नॉन लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन कैसी थी, लिविंग, लेकिन ये कैसी है, नॉन लिविंग। एंड फ्रीली परमेबल, यानी कि सब्सटेंस अंदर या बाहर इजीली जा पाएगा। लेकिन अगर वहाँ कुछ एक तरीके से पॉइंट्स प्रेजेंट है उसके थ्रू जाएगा, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन जो थी सेमी परमेबल थी, चूज़ करके अंदर भेज रही थी। मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है इन प्लांट्स। सभी में सेल वॉल किसकी बनी होगी, प्लांट्स में बात करें तो सेलुलोज की, फंगी में बात करें तो काइटिन की बनी होगी। फंगी में किसकी बनी होगी, काइटिन, काइटिन, CHITIN, काइटिन, किसमें, फंगी की सेल वॉल। ओके, एंड ग्लाइकोकैलिक्स होगी बैक्टीरिया में। ओके, तो सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, एंड सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, algae, is made up of cellulose, hemicellulose, pectin, etc. Function: protect the cell membrane, majorly responsible for maintaining the shape and size of the cell. सेल की शेप बनाए रखना, साइज प्रॉपर रखना, इसका काम होता है। तो यही चीज़ें हैं। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन सा सेल का पार्ट किसने खोजा है। जैसे कि सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल को किया एंटोनी वॉन लेवनहुक ने, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन, प्रोटोप्लाज्म को पुरकिंजी थे उन्होंने किया। सेल थ्योरी सॉन एंड स्लेडन ने दिया है। एक्सटेंड सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी को और भी एक्सपेंड किया, क्योंकि इन्होंने ना एक और चीज़ जोड़ी थी, ओमनिस सेलुले ई सेलुले। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि जो सेल है वो पुरानी एक्सिस्टिंग सेल से या प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जनरेट होती है। तो ये वाला पॉइंट रुडोल्फ विर्को ने ये जो है दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोलिंग सेंटर होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट, सेल के बीच में सेंटर में स्फेयर शेप का ये कंपोनेंट होता है। बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप कह देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियस, क्योंकि मेम्ब्रेन का काम क्या है, दो चीज़ों को सेपरेट करना। ठीक है, तो न्यूक्लियस का काम क्या होगा, बीच में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट, बाहर की तरफ क्या है, सेल, तो अंदर का जो मटेरियल है इस वाले मटेरियल से इनको सेपरेट करना, ये इसका काम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म and is connected to a system of membrane called endoplasmic reticulum. दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है कुछ इस तरीके का नेटवर्क बना लेती है जिसको हम ER कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही आगे डेवलप होकर के एक मेम्ब्रेन का सिस्टम तैयार करती है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER कह देते हैं। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बनता है। न्यूक्लियर एनवलप इज़ परफोरेटेड बाय द पोर्स, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ऐसा नहीं कम्प्लीटली ये पूरा राउंड है इस तरीके से, लेकिन ये कहीं कहीं पर कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं
जैसे कि अगर आप देखें तो ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये 2 है, एक ये वाली एक ये वाली, तो 2 मेम्ब्रेन हो गई ये। तो 2 मेम्ब्रेन जो हैं ये, इनमें भी अंदर वाली तो कंटिन्यूस होती है लेकिन आउटर वाली कंटिन्यूस नहीं है, कहीं कहीं पर होल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो होल्स या पोर प्रेजेंट है इनको न्यूक्लियोपोर कहा जाता है। अंदर इसमें मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको क्रोमेटिन कह देंगे, और इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक। और एक और बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अभी बताया था मैंने आपको जब हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट्स में। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती हैं, ये भी बता दिया। और ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही आगे चल के सिस्टम बना लेती है एक मेम्ब्रेन का, जिसको हम ईआर कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस के बारे में हैं। तो न्यूक्लियो पोर जो होते हैं उनका क्या काम होता है, देखो यहाँ हम बात करें तो जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए से मिलकर जब प्रोटीन के साथ में वो बाइंड होता है तो वही चल के क्रोमेटिन बना लेता है। अब क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है असल में इसी से प्रोटीन बनती है। डीएनए से एमआरएनए एंड एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, और डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। ओके, तो डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा, ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोकैरियोट्स में तो होती है साइटोप्लाज्म में, लेकिन यूकैरियोट्स में होती है न्यूक्लियस में। तो जो एमआरएनए यहाँ न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में बना है तो ये न्यूक्लियस में तैयार हुआ है, तो इस न्यूक्लियस को फिर बाद में साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करना, तो यहाँ से ये पोर्स के थ्रू बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, फिर वहाँ पे प्रोटीन बनाई जाती है। तो न्यूक्लियर पोर का काम क्या हुआ, किसी मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर एंटर कराना या फिर बाहर निकालना। ओके, और ये जो क्रोमोसोम या डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या कर रही है? तो ये जो क्रोमोसोम एंड डीएनए होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल हैं। जेनेटिक मटेरियल का मीनिंग होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में कुछ इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करना या करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हेरिडिटी भी कहते हैं। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, डीएनए। जो हमारे अंदर पेरेंट्स के करेक्टर्स आते हैं, जैसे आइज़ का कलर, बालों की शेप, बालों का कलर, या कोई भी हैबिट वगैरह जो पेरेंट्स से मिल रही है, जो हमें जेनेटिकली है या जो हमारे जन्म से ही है, वो चीज़ें डीएनए के द्वारा ही ट्रांसफ़र होती हैं। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम जो है पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं। ये 2 आर्म हैं, यानी कि इसके अंदर ये जो मैंने बनाई ये क्या है, बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में डीएनए या क्रोमेटिन फाइबर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों जो ये पार्ट हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो ये सब न्यूक्लियस के बारे में था। फंक्शन देखें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो होती है सेल की उनको कंट्रोल करना, सेल साइकिल को रेगुलेट करना, सेल साइकिल मीन्स सेल का डिवीज़न को रेगुलेट करना, एंड इट इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। माता पिता से बच्चों में करेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, इसको भी यही कंट्रोल करेगा। ओके, साइटोप्लाज्म और देख लेते हैं। सेल ऑर्गेनल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साइटोप्लाज्म जो होता है इट इज़ ए लिविंग कलरलेस सेमी लिक्विड होमोजीनियस स्ट्रक्चर। लिविंग का मीनिंग हो गया कि ये एक तरीके से लिविंग मटेरियल का बना हुआ है। सेल वॉल नॉन लिविंग थी, साइटोप्लाज्म भी लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग है। कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है। सेमी लिक्विड यानी कि लिक्विड जो है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। होमोजीनियस मीन्स पूरे जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसा नहीं कि कहीं पे कंसंट्रेशन, कहीं पे जो सब्सटेंस है बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो अंदर की तरफ क्या होता है, न्यूक्लियस, और बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसके यहाँ जो लिक्विड प्रेजेंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम 2 पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। यानी कि इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ इसको साइटोसोल कह देते हैं, और इसमें जो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कुछ मिल रही हैं, ये जो यहाँ स्ट्रक्चर्स मिलती हैं इसको कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। लिक्विड को मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोसोल, और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो सेल ऑर्गेनल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।